डाल दिए अमाउंट डाल दिए सर। दलाओ पहले राघवा सर दलाओ पहले और ले लीजिए सर थोड़ा। हेलो हाँ 799 आप हिला क्यों रहे हो यार दूसरे हाथ से? आप दूसरे हाथ आपका कहाँ है? It looks like earlier Sajid Maishi has said that KCR or any other regional party leader might take over as a new prime minister. So this is Sajid Maishi, the Hyderabad MP, 3-time MP, now casting his vote at one of the polling stations here in the constituency of Hyderabad. हाँ चंदन का पीछे फोन नीचे फोन नीचे कैमरा आए ना आपकी राय। मैं सबसे पहले तमाम चिवड़ला पार्लियामेंट के, हैदराबाद के, तेलंगाना के वोटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ निकल कर पोलिंग करिए। अभी तक पोलिंग बहुत स्लो है, पोलिंग को तेज करवाइए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। पोलिंग को जाकर वोट डालिए, अपने पसंद और नापसंद का इजहार करिए। रहा सवाल कि तेलंगाना में क्या होगा, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिनको असेंबली में कामयाबी मिली। आंध्रा में मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त कि वहाँ पर कामयाबी होगी। सर, कैंपेनिंग आपने की है, यहाँ के लोग जो हमसे बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि उनको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं थी, असद साहब तो वैसे ही जीत रहे थे। जो कैंपेनिंग आपने 3 सप्ताह में की है, क्या कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है सर इस बार क्या? नहीं सर, देखिए रिकॉर्ड का नहीं है, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को कैंपेन करना पड़ता है और मैं शुक्रगुजार हूँ आवाम की मोहब्बत का, उनकी वालेहाना मोहब्बत का। मगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाम तक पहुँचूँ, उनसे मुलाकात करूँ और उन तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। ये तो मेरा बुनियादी काम है। ऑपोजिशन ने काफी सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है? देखिए अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से असेंबली काउंसिल 5 वीवीपैट पर उसको भी काउंटिंग में देखा जाएगा। अच्छा होता कि और ज़्यादा हो जाते, मगर चलिए अब एक शुरुआत तो हुई है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा वीवीपैट के साथ काउंटिंग होगी। साहब has got a notice from election commission, but we see several other leader of BJP and other parties making many controversial comments, but they are not getting I am very surprised that the Prime Minister of India didn't get notice for his speech in Wardha, wherein he equated terrorism with one religion. I was very surprised that the Prime Minister should have got a notice when he equated terrorism with one religion and thereby casting aspersion into another religion. But as far as KCR is concerned, I am sure he will reply to it, and inshallah he'll give a very satisfactory reply to the election commission. Imran Khan, controversies erupted over Prime Minister Imran Khan wishing that Prime Minister Narendra Modi should come back. What do you think? Yeah, yesterday in my speech in Solapur, I have condemned the statement of Imran Khan. He has no right whatsoever to interfere in the electoral process
of a great country like India. He comes from a country where their electoral process is controlled by their army, by the ISI. And we have a very free and fair elections. It is completely wrong on the part of Imran Khan to say that he wants Narendra Modi as the Prime Minister of India so that the Kashmir issue can be solved. I would like to remind Imran Khan that Kashmir किसी के बाप की जागीर नहीं है. कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है. कश्मीरी हमारा दिल है. यकीनन कश्मीर में बहुत कुछ करना है जो मोदी नाकाम साबित हुए. But definitely what has come out of it is that the Prime Minister was basically trying to show that he is a victim of opposition parties and Pakistan, that they don't want him to see Modi as a Prime Minister. But now Imran Khan himself is saying that the Pakistani establishment, that is the ISI, wants, and the Pakistani Prime Minister wants Modi as the Prime Minister. So I request the people of India, the proud people of India, to ensure that what Imran Khan wishes, we should not allow that wish to be fulfilled. These elections, people of India would come out in large numbers and decide who should lead this great nation of ours. And I am sure that the wishful thinking of Imran Khan would be defeated. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि 2014 के मुकाबले 2019 में उनकी लहर और ज्यादा है. आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है ना कि प्राइम मिनिस्टर को जब पैर से उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है तो इस तरह की बातें करते रहते हैं. और कहीं पर भी देश में मोदी लहर नहीं है. 2014 में यकीनन थी, मैं इसका इकरार करता हूँ, और अब हरगिज़ नहीं है. ये इलेक्शन बड़ा ओपन इलेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम देश के अहम मुद्दों के ऊपर, ना कि जज्बाती मुद्दों के ऊपर जो मोदी लेकर लाना चाहते हैं, उस पर नहीं होगा, बल्कि जो बुनियादी मसाइल हैं, इश्यूज हैं गवर्नेंस के, उसके उस पर देखकर वोट डालें. सर, आप कई मौकों पे कह चुके हैं कि सिकंदर इकलौती तेलंगाना में इकलौती बीजेपी की सीट सिकंदराबाद है जो अभी प्रमोद साहब, मैं अभी कैंपेन नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जो असेंबली में रिजल्ट आया था वही रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में रिपीट होगा. सर, आपने अपनी तकरीर में वोट की अपील की थी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं लगता कि परसेंटेज बढ़े. अरे भाई, अभी तो 10 बजे हैं, इंतज़ार करिए. इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, आपके ज़रिए से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ पब्लिक से, आवाम से, कि प्लीज़ अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपकी मुल्क की, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करिए. अरे यार, हाथ हटाओ यार तुम. थैंक यू सर. भैया भाई, बस भाई.